Hello and welcome to Prism Academy. We are beginning a English language and literature series, and from this language and literature series, we are beginning with a first chapter, that is a letter to God. It is written by Joel Fluentis. Before beginning this chapter, I would like to introduce with the language and literature portion. What is the how we will proceed in the literature section. So, first of all, you need to know what is literature. Okay, as we are proceeding with the language and literature section, so you have to know what is literature. What is literature? Literature is literature is literary matter, of any idea, poem, prose, article, etc. It can be any literary matter, literary work of any idea, poem, prose, article, etc. Okay, idea, poem, prose, article, etc. That is literature. Now, next question: how we will proceed in the language and literature section? So let's know. How we will learn? We can say how we will learn or study language and literature. So our prime motto is we need to improve. First, we will proceed like we will be reading lessons. We will be reading lessons and poems. Okay, and from these poems and lessons, we will giving a more emphasis. We will be giving more emphasis on difficult words as well as phrasal verbs. Difficult words as well as phrasal verbs. Understood? So before beginning any part, any material, before beginning any process, we need to know how we will go through it. Okay, so we have known it, and let's begin our first chapter of our first flight. Okay, one more thing you need to know, that there are two books in our literature, language and literature section for class 10th. That is, first book is, there are two books prescribed by in NCERT. There are two books. Prescribed by National Council of Education, Research and Training. There are two books. First is First Flight. Basically, there are four books, but in our series that we are taking, First Flight and the
footprint without feet. First flight, and second one is footprint without feet. It has a well contained with lessons as well as poems. Okay, prose and poems. It is well contained. Okay, so let's begin with our first chapter. A letter to God. You need to know the author's name as well as poet name of every poem as well as these lessons. So it is written by G.L. Fuentes. It may ask in your board exams, so you need to know. So as our topic is a letter to God, so let me discuss something about letter with you. So you have seen various kinds of letters like business letter. Okay, you may have seen invitation letter. Okay, in inquiry letter. Okay, there can be a proposal letter. Okay, now there was a time when people sent letter when there was no e-media. Okay, e-messengers. Okay, there was no WhatsApp, no Telegram. Okay, so before that there was something through which we can convey our message from one place to another. Okay, and that means was the letters. Okay, as I have discussed, there are various kinds of letters, and you may have seen invitation letters is very common. Okay, birthday party letter. Okay, so letters, there are different kind of letters. Now this chapter basically about the letter to God and written by G.L. Fuentes. Before reading, there is something that we have to understand, that here it is written, they say faith can move mountains. What is faith, and where do we have to keep our faith in? Okay, this is the question this story delicately poses, और यही क्वेश्चन है कि लेटर टू गॉड तो हमारा चैप्टर टॉपिक का नाम हो गया, दैट इज द नेम ऑफ द टॉपिक, बट देयर वन मोर थिंग दैट वी हैव टू we will take a lessons from it, that is about the faith. What is faith, and what should we put our faith in? Next question is, what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. More than letter, this is the story more about the faith and belief. So as I have discussed you, we will give the emphasis on the difficult words also. This is the main motto of our language and literature, to improve our vocabulary as well as English. Okay, so here one phrasal verb on this delicately poses. What? Delicately poses. So what does it mean? You may have seen that plant stem is so delicate. If I say plant stem is so delicate, means plant की जो डाली है बहुत नाजुक है, and I am using a word delicate. In the same way, नाजुक मतलब जो बहुत आसानी से तोड़ी जा सके. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर डेलिकेटली पोजेस का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्रेस करना. पोजेस का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्रेस करना, और डेलिकेटली मतलब होता है किसी चीज को आसानी से एक्सप्रेस करना, किसी आइडिया को, किसी थॉट को, किसी भी मैटर को बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर देना. तो अबाउट फेथ, कि हमें फेथ कहाँ रखना है. ठीक है, और फेथ कैसे माउंटेन्स को भी हिला सकता है. इसका एक बेस्ट एग्जांपल है अबाउट दशरथ मांझी जी, जिन्होंने पहाड़ के बीच में से रास्ता बना दिया था विदाउट एनी मशीनरी. दैट वाज द वन ऑफ द बिग ग्रेट एग्जांपल ऑफ द फेथ. ओके, इन द सेम वे this story delicately poses that where should we what should we put our faith in. Okay, so story delicately poses mean here a matter that can be
You can write in your books in the side way, okay? That can be easily expressed in a very easy, and tactful manner. ओके, किसी भी मैटर को बहुत आसानी से हम उसको एक्सप्रेस कर पाए, दिस वर्ड इज डेलिकेटली पोजेस. नाउ लेंचो, इसका मेन कैरेक्टर जो है, लेंचो इज द मेन कैरेक्टर, लेंचो इज द मेन कैरेक्टर, he is a main character of this chapter and he is a farmer. He is a farmer, ये किसान होता है जो कि लेटर लिखता है गॉड को. ऑब्वियसली हमारा फेथ मोस्टली गॉड में होता है. जब भी हम थोड़ी परेशानी में आते हैं, आवर फेथ, वी पुट आवर फेथ इन गॉड. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट what should be put our faith in. okay, ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे एंड इसका आंसर यही हो सकता है that we can put our faith in God. okay, now who writes a letter to God when his crops are ruined? Here a word come ruin. It is a past participle of ruin. It is a verb. okay, so it's a past participle of ruin. So let me write it in the abbreviated form. We see PP for the past participle. okay, it is a past participle of ruin. Past participle of ruin, it means that is something is being destroyed. किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, दैट इज ruined. ठीक है, उसकी फसल जैसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ruined हो जाती है. ओके, मैन his crops ruined. He writes a letter to God asking for 100 pesos. वो 100 pesos, pesos is a currency. okay, pesos is a currency. Peso is a currency. Does Lencho's letter reach to God? क्वेश्चन आता है कि क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचेगा. ठीक है, नेक्स्ट, डज गॉड सेंड हिम द मनी? अगेन एक और क्वेश्चन, क्या गॉड लेंचो को मनी भेजेंगे? सेंड. नेक्स्ट, थिंक व्हाट योर आंसर अबाउट दीज क्वेश्चंस वुड बी. थोड़ा टाइम लो और इस क्वेश्चंस को, इन दोनों क्वेश्चंस को क्रिटिकली सोचो. क्या गॉड लेंचो को मनी भेजेंगे? क्या उसका लेटर पहुंच पाएगा गॉड तक? एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. और गैस करें कि हाउ द स्टोरी विल गोइंग इट. ठीक है, इसमें क्या अपने अंदर क्या सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, क्या हो सकता है. यूज योर क्रिटिकल थिंकिंग. इससे आपका क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग स्किल भी बढ़ता है. एज अ सीबीएसई का जो पेपर डिजाइन है वो बेसिकली किस पर है? मोर अबाउट द एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग को आपका इंप्रूव करना, चेक करना. सो जस्ट यूज योर क्रिटिकल थिंकिंग कि क्या लेटर गॉड तक पहुंचेगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गॉड उसे मनी सेंड करेंगे? ओके, नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर. And we have, before beginning a chapter, we have a activity that we will do. Okay, we have an activity. Okay. Let's do the activity first. Here a activity. Obviously we are discussing about letter. Okay, we are discussing about letter. So we will introduce with some terms that we can use in the post office. In the context of the post office, as in the context of the letter, we use some
terms, some words, and we need to know the meaning of these words. Okay, one of the cheapest ways to send money to someone is through the post office. This is considered that one of the cheapest way to send money is through the post office. It is true. Cheapest here meaning, let me introduce where it is written. One of the cheapest way this is. Okay, cheapest means that is not very expensive, not very expensive, or we can say affordable, convenience. Okay, that is very affordable, cheapest. One of the cheapest way to send money to someone is through the post office. Have you ever sent or received money in this way? क्या कभी आपने इस तरीके से मनी को सेंड किया है पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस के थ्रू? हियर व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं और इन वर्ड्स का हमें मीनिंग पता करना है. ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज, हियर वी हैव काउंटर. हियर इज फर्स्ट वर्ड वी हैव काउंटर. Here counter means the front desk of any office. That is, you already know, front desk of any, किसी भी ऑफिस का फ्रंट डेस्क of any office. Okay, किसी भी ऑफिस का फ्रंट डेस्क होता है हमारा काउंटर. Now let's buy a money order form by paying 50 paise to person behind the counter. Now next we have money order. मनी ऑर्डर, हम कुछ पैसे पे करेंगे, कुछ उसको पैसे देंगे और उससे क्या ले लेंगे, मनी ऑर्डर. मनी ऑर्डर को मैं आपको दिखा देता हूं कैसा दिखता है. लेट मी इंट्रोड्यूस विद द मनी ऑर्डर. इट इज समथिंग लाइक, एक रिसिप्ट होती है. ओके, ये होता है मनी ऑर्डर. ये कुछ ऐसा दिखता है. इसके ऊपर हमें ब्लॉक लेटर्स में अपनी पूरी डिटेल फिल करना होती है, जहां भी हमें जैसे इसको भी पैसे भेजना है. ओके, इसमें हमें क्या करना होता है, पूरा अपना ऑल द इंफॉर्मेशन वी हैव टू फिल इन इट एंड वी विल सेंड इट. ओके, नेक्स्ट. सो यू हैव सीन मनी ऑर्डर इन एज इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो मनी ऑर्डर इज written a small document, or a receipt, we can say. Receipt, information receipt. Receipt that we get in the post office. We get from the post office. That we get from post office for giving information, जिसको भी हम मनी भेज रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन उसमें हम क्या करेंगे, फिल करेंगे. एंड नेक्स्ट वी हैव, उसको हमें ब्लॉक लेटर्स में फिल करना होता है. देन हम काउंटर क्लर्क को कुछ फीस पे करेंगे. काउंटर क्लर्क को एज वी हैव नोन द मीनिंग ऑफ द काउंटर, इन द सेम वे देयर इज वन क्लर्क. क्लर्क मीन्स द पर्सन हु सिट्स ऑन द काउंटर. In the office, there you can see a front desk, and on that front desk there is one person who is giving his service, and that person is called clerk. So person who is in charge, we can say who is in charge, or employee, he may be an employee, she may be an employee, in charge of a front desk. क्या हो सकता है, इंचार्ज हो सकता है फ्रंट डेस्क का, काउंटर क्लर्क. नाउ टेक बैक द मनी ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट काउंटर फाइल फॉर योर रिकॉर्ड. नेक्स्ट वी हैव, हमें क्या ले लेना है, मनी ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट रिकॉर्ड काउंटर फाइल ले लेना है. एक्नॉलेजमेंट मीन्स होता है किसी से हम लोग निश्चिंत रहें किसी चीज के बारे में, हमारे लिए एक कि हम उस चीज को कैसे
एक्नॉलेज कर पाएँ यस वी हैव सेंड अ मनी, तो उसका एक काउंटर फॉइल होता है एंड दैट काउंटर फॉइल मीन्स होता है एक डिटैचेबल स्लिप होती है, एक डिटैचेबल स्लिप और स्टैम्प फ्रॉम एनी डॉक्यूमेंट और रिसिप्ट, किसी भी फाइल का किसी भी रिसिप्ट का एक डिटैचेबल पार्ट होता है, ठीक है, डिटैचेबल स्लिप होती है, एक डिटैचेबल स्लिप और स्टैम्प जिसको हम अपने पास रख लेते हैं। ओके, उसमें हमें पता रहता है कि हमने हमारे द्वारा किसी को पैसा भेजा गया है थ्रू पोस्ट ऑफिस, और उस एक हमारे पास एक जो रिसिप्ट रहेगी दैट रिसिप्ट इज कॉल्ड काउंटर फॉइल। लेट मी मूव अहेड, लेट मी सी देयर इज समथिंग एल्स, नो, ओके, दिस इज अ मनी ऑर्डर यू हैव सीन। Okay, there are some questions we need to deal with it. Okay, just think about who will send the money to and how much you might want to send money for a magazine subscription or to a relative or a friend. You can write a letter, you need to think that how can you send money to, किसको भेजेंगे आप जब आपको मैगजीन सब्सक्रिप्शन चाहिए हो, और टू अ रिलेटिव और अ फ्रेंड, ठीक है, किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को, या फिर मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए हमें मनी सेंड करना है तो कैसे भेजेंगे जरा सोचें। और यू मे फिल आउट फॉर्म विद योर सेल्फ एज सेंडर एंड पार्टनर और एज रिसीवर, उस यूज अ पार्ट ऑफ योर पॉकेट मनी एंड submit the form at the nearest post office to see how it's done, see how your partner enjoys getting money by post. Listen, when we experience learning, it may become the part of our life. Okay, it become an intricate part of our life और उसे हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। इसलिए उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर को हमें जानना है कि कैसे सब प्रोसेस होती है। यू मे गो टू द पोस्ट ऑफिस, आस्क him money order, pay some passes, fill the letter with in the block capital letters, and send a money to whoever you want to send, to whom you want to send. इसको भी आपको पैसे भेजना है, उसको आप भेज सकते हैं। Notice that the form has 3 parts. We have already discussed that there are various parts of the money order. Okay, 3 parts, that is money order form, the part of official use, the acknowledgement. Okay, this is the now complete the following statement. In addition to the send, the form has to sign by the, किसके द्वारा साइन किया जाएगा ये आपको लिखना है। The acknowledgement section form in the send by the post office, after the sign it space, ये आपको रिटेल पोस्ट ऑफिस में जाके करना है। ओके, आपको पोस्ट ऑफिस जाना है, वहाँ पे ये प्रोसेस को जानना है, ये उनको फिल करना है। दिस इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, so let me introduce with the main part of the chapter. Now we are going to begin. Now the house, only in the entire valley, एक हाउस है जो कि सिर्फ उस वैली के अंदर एक ही घर दिख रहा है हमें, ठीक है। एक वैली बेसिकली स्लोप टाइप की लैंड्स होती हैं। ओके, क्या होती है, फ्लैट लैंड ना होकर स्लोप लैंड होती है। ओके, तो उस वैली के अंदर हमें एक ही हाउस दिख रहा है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। हियर अ क्रेस्ट इट इज ऑलरेडी गिवन इन आवर चैप्टर, दैट इज टॉप ऑफ अ हिल। एक ऊंची चोटी पर, हिल की ऊंची चोटी पर क्या है, एक घर, एंड उस चोटी के ऊपर से हम कई सारे रिवर देख सकते हैं। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अगर मैं वहां जाके खड़े होकर देखूं तो मुझे रिवर दिखेगी, हरे भरे खेत दिखेंगे जो कि डॉटेड मीन्स फिल्ड विथ, जो कि अच्छे हरे भरे फूल से, पत्तियों से हमें दिखेंगे। और यू प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि दैट वी विल प्रोड्यूस अ गुड हार्वेस्ट, और हमें उनको देख के ऐसा लग रहा होता है कि दे विल प्रोड्यूस अ गुड हार्वेस्ट।
The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Downpour here same meaning, means a छोटी हल्की सी वर्षा. Okay, a slight rain. Here a word come downpour, it's mean a slight rain, एक हल्की सी वर्षा, a slight rain. Downpour it's a verb. Okay, या मैं हिंदी में लिख दूं इसकी, हल्की सी वर्षा, हल्की सी वर्षा, it's a downpour. Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. बहुत intimately मतलब who knew his field intimately, बहुत अच्छे से जानता था. intimately मतलब बहुत अच्छे से, deeply और densely. He deeply knew with his field. Okay, intimately. Then or well connected, deeply well connected. Okay, deeply well connected, well connected or known. Okay, now had done nothing, उसने कुछ नहीं किया था, बस स्काई को देख रहा था. टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है वो. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. विमन. ओके, विमन इज अ लैंचो वाइफ हियर. विमन इंडिकेट, विमन जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है अबाउट द वाइफ ऑफ लैंचो, वाइफ ऑफ लैंचो. ओके, विमन इज वाइफ ऑफ लैंचो. The woman who was preparing a supper. यहाँ पर आप लोग शाम को एक हल्का सा मील लेते होंगे, हल्का सा एनर्जी के लिए आप खाना खाते होंगे, या फिर हल्का सा डिनर, उसको हम लंच, ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं, इवनिंग ब्रेकफास्ट. ओके, जैसा हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, एक 4 to 5 PM के बीच हम लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं. उस ब्रेकफास्ट को हम बोलते हैं सपर, और वी कैन से एन इवनिंग मील, एन इवनिंग मील. ऐसा खाना जो कि शाम के वक्त खाया जाता हो उसे हम सपर बोलेंगे. तो जो लैंचो की वाइफ है वो सपर प्रिपेयर कर रही थी फॉर देयर फैमिली. रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. जैसे ही लैंचो बोलता है यस गॉड विलिंग, लैंचो का रिप्लाई होता है हाँ शायद भगवान ऐसा चाहते हो. रिप्लाई किसका था ये? यस गॉड विलिंग. इट इज रिप्लाई ऑफ लैंचो. यहाँ ऐसा भगवान चाहते होंगे कि हमें थोड़ा सा पानी, वर्षा मिल जाए हमारे खेतों को. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. और जो ज़्यादा उम्र के लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और स्मॉलर वन, जो छोटे बच्चे थे, वो ऑब्वियसली प्लेग्राउंड में जाके खेलेंगे. तो वो लोग सेम प्लेग्राउंड नियर द हाउस, घर के पास एक प्लेग्राउंड था, वहाँ पर खेल रहे थे. जब तक कि लैंचो की वाइफ ने उन्हीं सभी बच्चों को खाने के लिए नहीं बुलाया, वो जब तक खेलते रहे. यहाँ पर लिखा हुआ है while the smaller ones were playing near the house until the women called them. और जब तक कि उन्होंने सभी बच्चों को बुला नहीं लिया, वो लोग वहाँ पर खेलते रहे. नेक्स्ट, come for dinner. It was during the meal that just as, और उनके डिनर का टाइम था. तभी क्या होता है, लेट्स सी. Lancho had predicted big drops of rain. Big drops of rain begin to fall. लैंचो ने जैसा कि प्रिडिक्ट ऑलरेडी कर चुका था कि हल्की सी वर्षा हो सकती है. वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था. ठीक है, लो क्रेस्ट हिल पर उसका घर था. वहाँ से देख रहा था कि शायद हमारी
बिमन का रिप्लाई था उसकी वाइफ का कि हमारी मे बी थोड़ा सा वर्षा मिल जाए, हमारे खेतों को पानी मिल जाए। तो लेंचो ने बोला यस गॉड विलिंग। तो जैसा कि उसने प्रिडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदों का आना शुरू हो गया। उनका डिनर का टाइम था उस टाइम। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। Here two words come you may need to know predicted. It is again a past participle of predict. It is a past participle of predict. Past participle of predict. It means to convey something, to convey something before happening, बिफोर हैपनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, किसी घटना के होने से पूर्व निर्धारित, पूर्व हमने अनुकूल हमने उस अनुसार जो एनालिसिस के बेसिस पे हमने पता कर लिया कि यस ऐसा हो सकता है। ओके, तो उसे हम प्रेडिक्शन बोलते हैं। प्रेडिक्शन इज अगेन अ नाउन, ठीक है, प्रेडिक्शन इज अ नाउन एंड हियर प्रेडिक्टेड इज अ वर्ड दैट इज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ प्रेडिक्ट। ये प्रेडिक्ट इज अ फर्स्ट फॉर्म। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदों का आना जैसे शुरू हुआ। ही सी एज ही वाज सीइंग द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, वहां से देख रहा था। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। Here again a word come approaching. Approach, it is arise from, it is a ing form of approach. It means, approaching means movement of anything, ठीक है, movement of anything to some place or location. मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का मूव करना, अप्रोच करना। सपोज एग्जांपल अभी कुछ दिनों बाद हम बोलेंगे, जैसे 2-3 months of our board exams, we will approaching our board exams, okay, final annual board exams, okay. So in the same way we can use that word approaching, that we are approaching the board exams, okay. तो वहां पर बड़े बड़े क्लाउड्स अप्रोच कर रहे थे टूवर्ड्स हिज हाउस, ओके, यहाँ पर उसका घर था, उसकी फील्ड थी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एयर जो थी काफ़ी ठंडी, ऑब्वियस जब बारिश का टाइम होता है, ठीक है, व्हेन देयर इज अ रेन वी कैन फील अ फ्रेश एंड स्वीट एयर। द मैन वेंट आउट फॉर द नो अदर रीजन देन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। Yes, like us, we also move outside of our home when there is a rain. Okay, in the same way, he wanted a pleasure of feeling the rain on his body. When he returned, he exclaimed. Here a word exclaimed. In the grammar, you learn exclamatory sentence. You learn exclamatory sentence. You connect this word from the exclamatory. So what are exclamatory sentences? The exclamatory sentences are those sentences which can express sudden feelings, which can express excited feelings. Okay, so you can connect this word exclaim from the exclamatory sentences. Exclaim means in very sudden or higher excited manner. Okay, in a sudden and excited manner. In a sudden and excited manner, बहुत ही excited manner में बोलता है, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. जैसे ही बारिश का आना शुरू होता है, बड़ी बूंदों का गिरना शुरू होता है,
तो एक्सलेम एक हायर एक एक्साइटेड स्टेट में बोलता है कि दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं जो कि स्काई से फॉल कर रही, दे आर न्यू कॉइन्स, उनके लिए एक नए कॉइन्स की तरह है। ठीक है, न्यू कॉइन्स वाई, इससे एक क्वेश्चन भी बनता है कि वो न्यू कॉइन्स क्यों बोल रहा है, बिकॉज यहां से बोर्ड, कई बोर्ड्स में, इवन स्टेट बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आता है कि why Lancho said the raindrops were like new coins, because they were wanting a good harvest, obvious, and if they were wanting good harvest, they need a downpour. They need a downpour, means slight rain, and that was going to happen in the story. जैसा कि उनने, ठीक है, जैसा कि उन्होंने चाहा था, जिस तरह की विश की थी उन्होंने कि देयर वुड बी अ डाउनपोर, वैसे ही होने लगा। तो उनको ऐसा उन्होंने इसको बताया गया, उसने एक्सप्लेन करके बताया गया है कि वो किसकी तरह है, रेन ड्रॉप्स कैसी है, न्यू कॉइन्स की तरह, एक नए, हाँ, उनके लिए धन की तरह काम करेंगी। ऑब्वियसली उनको अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा जब अच्छी बारिश होगी। किसानों को अभी अगर उन्हें अच्छी फसल की उपज चाहिए, ठीक है, फसल की पैदावार अच्छी हो, तो खाद के साथ साथ पानी की भी जरूरत होती है। पानी में एक बारिश एक अच्छा एक सोर्स हो सकता है, रेन ड्रॉप, ठीक है, रेन वाटर। तो सेम वे द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, उनका साइज बताया गया है, जो बड़ी ड्रॉप्स थी उनका 10 सेंटीमीटर साइज है, ठीक है, n सेंटीमीटर पीसेस, एंड लिटिल वंस आर 5। ओके, छोटी वाली ड्रॉप्स का साइज है 5 सेंटीमीटर। नाउ यूजिंग योर सम क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्वियस जो बड़ी ड्रॉप्स होंगी उनका 10 सेंटीमीटर साइज है, तो डू यू थिंक 10 सेंटीमीटर साइज की रेन वाटर ड्रॉपलेट्स तो नहीं हो सकती, इट मे समथिंग एल्स। इवन इन द सेम वे दिस 5 सेंटीमीटर साइज की रेन ड्रॉप्स हो सकती हैं। नाउ with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. Satisfied expression था क्योंकि there was a rain. Regarded the field of rye with its flowers draped in a curtain of rain. और उसको बताया गया है draped in a curtain of means something that is covered with a cloth. जो फ्लावर उसके ऊपर दिख रहे थे, ठीक है, जो फसल के ऊपर फूल आता है, ठीक है, पौधे के ऊपर फूल आता है, तो फसल के ऊपर जो फूल है वो ऐसा दिख रहा था जैसे कि इट इज अ ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। पानी में, जो पानी से क्या हो गया, पूरा एक कपड़े की तरह किसी ने कवर कर लिया हो, पानी ने फसल को कपड़े की तरह कवर कर लिया हो, जैसे कि हमारे डोर को कर्टेन क्या कर देता है, ड्रेप कर लेता है। हमारे डोर को कर्टेन क्या कर लेता है, ड्रेप कर लेता है, कवर कर लेता है। In the same way, the field of ripe covered with flowers draped in a curtain of rain. But suddenly, तभी अचानक क्या होता है, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. Here again a word come, hailstones. Hailstone means large masses of ice. ठीक है, लार्ज मासेस ऑफ फ्रोजन आइस falling from the sky. लार्ज मासेस ऑफ आइस जो कि कहां से गिर रहे हैं, स्काई से। एंड द वर्ड वी यूज फॉर दिस पर्टिकुलर सेंटेंस दैट इज द हेलस्टोन। तो बड़े सडनली क्या होता है, बारिश हो रही होती है और हेल स्टोन्स का गिरना शुरू हो जाता है। नाउ you know with this hailstone and what happened after that, because India is a prime farming country, okay, it is a कृषि प्रधान देश है। तो आपको पता होगा कि जब हेलस्टोन्स गिरते हैं तो फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, बर्ड्स एनिमल्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है,
ठीक है, तो यू मे एक्सपीरियंस दिस एंड यू कैन conclude, you can and you can predict that what will happen next in the story. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. और जो छोटे बच्चे होते हैं, ऑब्वियसली जब बारिश होती है और बारिश के साथ अगर ओले आ जाए तो दे कंसिडर दोज आइस क्यूब्स और hailstones like frozen pearls. Pearls means we use some pearls like हीरे जो कि हम लोग नेकलेसेस और ब्रेसलेट्स में यूज करते हैं, तो उसको मेटाफर किया गया है पर्ल्स से. तो पर्ल्स मीन्स द स्टोन्स यूज इन ज्वेलरी. लेट मी राइट दैट साइड, that will be clearly visible. Okay, so here hailstones means frozen pearls means the stone we use in jewelry. The stones we use in jewelry. Now, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे ही ओलों का गिरना शुरू होता है, हेल स्टोन्स का गिरना शुरू होता है, तो वो दे कंसिडर दोज होल हेल स्टोन्स लाइक द फ्रोजन पर्ल्स. इट मे बी क्वेश्चन कम इन योर CBSE एग्जाम कि व्हाई दे वर कंसिडरिंग व्हाई द बॉयज वर एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन एंड कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, एंड व्हाई द फ्रोजन पर्ल्स indicate with the hailstones. उसको क्यों उसकी तरह बताया गया है कि hailstones frozen pearls की तरह है. Okay, now it's really getting bad now, exclaimed the man. Again exclaim. तो वो अगेन एक सडन फीलिंग एक्सप्रेस करता है अपनी और बोलता है कि अब हमारे लिए ये बहुत बुरा होगा. ऑब्वियसली तो किसी भी किसान के लिए उसकी फसल नष्ट हो जाना इससे बड़ी बुरी बात नहीं हो सकती है ना. तो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैम. आई होप इट पासिस क्विकली. और वो ऐसा उम्मीद करता है कि वो कुछ ही देर में वो रेन जो है बंद हो जाएगी. ठीक है, रेन रुक जाएगी. तो ही वॉज विशिंग इट. इट डिड नॉट पास क्विकली. फॉर एन आवर द hail rained on the house. और इट डिड नॉट पास क्विकली. लगभग 1 घंटे तक वो बारिश चलती रही, बारिश रुकी नहीं. एंड द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली द वेल वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉइल. और ऐसा लग रहा था, ऑब्वियसली द कलर ऑफ द होल hailstones इज वाइट. सो ऐसा लग रहा था कि जो कॉर्नफील्ड है, वैली है, उसको किसने कवर कर लिया हो? सॉल्ट ने. वाइट सॉल्ट ने किसने कवर कर लिया हो? पूरी फील्ड को. नॉट अ लीफ रिमेन. ऑब्वियस जब हेलस्टोन्स गिरते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को और बर्ड्स, एनिमल्स को. तो एक भी पत्ती नहीं बची थी पेड़ पर. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. जो फसल थी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. द फ्लावर्स वर ग्रोन फ्रॉम द प्लांट्स. फूल थे जो पूरे प्लांट्स के ऊपर, वो भी जा चुके थे. एंड लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. इसको पूरा एक नेचर को बताया गया, नेचर को कि उसका कैसा एक्सप्रेस किया गया अबाउट द नेचर. इवन उस नेचर के अंदर हमने लेंचो को ले लिया है कि क्या कंडीशन थी हेलस्टोन्स गिरने के बाद प्लांट्स की. ठीक है, बैली और जो पूरा एरिया था वो कैसा दिख रहा था? लाइक इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट. ऐसे ही प्लांट्स पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके थे. और कंडीशन ऑफ लेंचो वॉज लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. काफी ज्यादा दुख में भर चुका था वो. सैडनेस मीन्स काफी ज्यादा दुख में आ जाना. ओके, इट इज एडजेक्टिव. सैडनेस इज एडजेक्टिव. काफी ज्यादा दुख में आ जाना. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जैसे ही स्टॉर्म पास हो जाता है, जैसे ही खत्म हो जाती है बारिश, आंधी रुक जाती है. He stood the middle of the field and said to his son, a plague of locusts would
a plague of locust have left more than this. जो लोकस्ट प्लैग ऑफ लोकस्ट उससे ज़्यादा छोड़ देता। अगर प्लैग ऑफ लोकस्ट भी आ जाता ना, इतनी बर्बादी नहीं होती हमारी खेत की, हमारी फसल की। तो उसको उससे कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर दिया अ प्लैग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इन द वेरियस बोर्ड एग्जाम्स। Plague of locust means locust here word already given in your textbook, that is insect which fly in big swamps. बड़े ग्रुप में बिग स्वैम्प में इंसेक्ट का मूव होना, इंसेक्ट का फ्लाई करना ऑन द फील्ड, जो कि किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? क्रॉप्स को। क्रॉप फील्ड्स पर बड़े स्वैम्प्स का, बड़े इंसेक्ट्स का ग्रुप जो कि फ्लाई करता है और किसको डिस्ट्रॉय करता है? क्रॉप्स को। यहाँ पर लोकस्ट वर्ड का यूज किया है हमने। तो प्लैग मीन्स होता है एक एपिडेमिक, ठीक है। अ प्लैग इज अ काइंड ऑफ एपिडेमिक जो कि सीन इन द क्रॉप फील्ड्स जब लोकस्ट उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो लोकस्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किससे कंपेयर किया गया है? विथ व्हाट डिड लैंचो कंपेयर्ड हिज रुइन क्रॉप? तो ही was comparing his ruined crops with the locust of the plague, ठीक है। plague of locust would be left more than this. The hail has left nothing. जो बारिश हुई, जो ओलावृष्टि हुई, hail storms with rain, उसने कुछ भी नहीं बचने दिया। This year we will have no corn. और उसका कहना था लैंचो का कि इस साल हमें बिल्कुल ही उपज नहीं मिलेगी, ठीक है। कॉर्न का हमें प्रोड्यूस नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन। हियर अगेन अ वर्ड इज सॉरोफुल। हिज मीन्स ग्रीफ। इट मीन्स ग्रीफ, दुख भरी, है ना। हिंदी में मैं बोल सकता हूं इसका दुख से भरी हुई रात। सॉरोफुल, दुख से भरी हुई। ओके, ग्रीफ। दे वर ऑल इन द ग्रीफ कि इस साल हमें क्रॉप नहीं मिलने वाली। इट वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म्स। नाउ हेल स्टोन्स एंड ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। और हमारा किसी, जो भी हमने काम किया खेतों में, जो हमने मेहनत की, वो किसी काम की नहीं रही। डबल इन्वर्टेड कॉर्नर कोटेड किया गया है कि उसका क्या थॉट प्रोसेस था उस टाइम, जैसे ही उसकी क्या क्रॉप डिस्ट्रॉय होती है। और इट मे कम इन योर एग्जाम कि आफ्टर व्हेन द क्रॉप्स वर ruined, what was the reaction of the Lancho? So you can write that answer ki what was the reaction of the Lancho. The whole family, their night was very sorrowful one. All our work for nothing. There is no one and he was saying there is no one who can help us. His statement, and we will go hungry this year. अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा, एक बार मैं क्विकली बता देता हूँ, ठीक है। देन we will taking this lecture in the next lecture. Okay, so we will complete these all answers in the next video lecture. Till then, stay tuned. Okay, just hit the bell icon, subscribe our channel, and you can like it and stay for all the notifications. Just hit the bell icon. Thank you and have a great life.